सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सागर एंड इस वीडियो में हम देखेंगे एक्चुअली आई एम स्पीकिंग आर इंग्लिश 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 लैंग्वेज. So this is my first video of coding content, and we will see in this video a map. What is map? Map is a, can say, is a functionality in Java. So we will see what is the map, and we are learning Java. So first मैं स्टार्ट करूंगा किससे? HTS से. HTS क्या है? ये एक कंपाइलर वी कैन से, ये जावा को लिखने का एक प्लेटफॉर्म है. आप कहीं भी लिख सकते हो जावा. You can write in Visual Studio Code also, and you can write in HTS also. But मैं prefer करूँगा if you are learning Java, so you need to use HTS. So I will open its HTS. So it will take time. Let's इसको चालू होने देते हैं. कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा. ओके. सो हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज मैप इन जावा, एंड उसके साथ हम सम प्रोफो कुछ करके भी देखेंगे मैप के साथ कैसे क्या यूज होता है. सो लेट्स सी. इसको ओपन हो देते हैं. ये थोड़ा टाइम लेगा. इट विल टेक टाइम. ओके, नाउ इज ओपन. Okay, so I hope you can understand my language because I am speaking English. Okay, so I will create first. I will create a project. Okay, new project. You have to go in the file for new project, and new, and you can use Java project, and also you can use Maven project, Spring Starter project. So if you are using a Spring framework, so you can create a Spring Starter project in Java. So simply I will create only normal project. So new, you need to go new and Java project. अरे क्या हो रहा है? Java. Okay, and you need to give a name. यहाँ पे नाम दो कुछ भी. I will give random. Okay, random task, or just click on the next and just click on the finish. It has created. You can see a random task which it has created, and also you can see JRE system library. ये एक टाइप का आपके सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन होती है इसमें जारी फाइल. जैसे कि जावास्क्रिप्ट में आप रिएक्ट वगैरह क्रिएट करते हो तो वहाँ पे कुछ कम ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं फाइल जिसमें आपके प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स होती है. उस तरह इसमें है. इफ़ यू हैव लर्न जावास्क्रिप्ट यू ऑल्सो नो. सो इसमें एक फाइल डिफॉल्ट क्रिएटेड आई मॉडल को डॉट जावा. इसको आप डिलीट कर सकते हो. आई विल डिलीट दिस फाइल. ओके. यदि आप जावा सीख रहे हो तो आपको मालूम होगा कि हम अगर प्रोजेक्ट रन करना चाहते हैं, हमारा कोड रन करना चाहते हैं, तो हमको मैन मेथड की ज़रूरत होती है. सो फर्स्ट आई विल क्रिएट अ क्लास कॉल्ड मैन. You can give any name for that class, but I will give main, and yes, main class is created. Now I will create a main method inside a main class, inside the main class. Okay, so just click main. Okay, it's not giving me auto selection. We can create a random. We need to give main. Okay, and enter. So you can see here main method has created. If you want to run your code, so you need to use this main method. Okay. So first we will check our code is running or not. So I will print system.println Sagar. Okay, Sagar. And just click on the button, run button. This is a run button. This is a stop button. You can see here our code is running Sagar. Okay. I hope you will understand. तुमको समझ में आ रहा होगा. अगर नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, समझ लेना आराम से. सो हम क्या देखने वाले हैं? मैप को. जावा में मैप होता क्या है? तो आपने सबसे पहले ये बताओ कि जावा स्क्रिप्ट अगर पढ़ी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नहीं पढ़ी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. Okay, so first I will create a array in the Java. So how we can create array? We can simply create array in Java. Like we will have to give name of array. Like what we can insert in the array. यहाँ पे हमको देना पड़ेगा यहाँ पे जो भी हम इंसर्ट करना चाहते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग और कुछ भी. और यहाँ पे हम देंगे वेरिएबल नेम. इसके बाद we can create array like this. Okay, and we can add elements in that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, and और एलिमेंट इसमें डाल देते हैं like this. ये हमारा एरे बन के तैयार हो गया. इसमें कुछ नंबर्स हैं 1 2 3. आप इसमें कुछ स्ट्रिंग नहीं डाल सकते. यहाँ पे ऐसे अगर आप डालोगे यहाँ पे इट इज नॉट वेल. ओके, यू हैव टू गिव ओनली नंबर हियर. इफ यू वांट टू इंसर्ट सम स्ट्रिंग, so you have to give string. You have to write string here, and you need to convert these numbers into strings. So always go with I will go with किसके साथ जाना है हमेशा? रूल्स के साथ. जावा में ये रूल्स होते हैं. जावा स्क्रिप्ट में नहीं. जावा स्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं? वाइल लिखा,
और एरे का नाम दिया जो भी वेरिएंट ईयर कॉन्स्ट ऐसे, और एक एरे बना दिया, इसमें आप कुछ भी डालते रहो। तो ऐसा नहीं करना है यहाँ पर। ओके। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी लेंथ को, एरे की लेंथ को क्या होती है, एरे डॉट लेंथ। ऐसे देखते हैं ना जावास्क्रिप्ट में। हाँ, तो जावा में भी ऐसे ही देखते हैं। तो हमारी लेंथ आ गई, इसमें 22 एलिमेंट्स हैं, 22 नंबर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सीख रहे थे मैप को, है ना। मैप क्या होता है, यदि हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी, इफ यू हैव लर्न विद जावास्क्रिप्ट, सो यू वेरी वेल नो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ये ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऐसे, इसमें हम क्या डालते हैं, की वैल्यू पे। उसी तरीके का है मैप जावा में। जावा में भी हम मैप के अंदर की और वैल्यू डालते हैं, इंसर्ट करते हैं की वैल्यू को। ठीक है। अच्छा, मैप कैसे बनाते हैं जावा में, सबसे पहले आपको देना पड़ता है मैप। मैप होता है जावा में एक इंटरफेस, है ना। अब इंटरफेस क्या हो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी हम वो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी मैप को सीख रहे हैं। ठीक है। सो मैप आपको ऐसे लिखना है, और फिर इसके अंदर जो इसमें ये दिए ना, इसके अंदर आपको लिखना है क्या, सबसे पहले आएगा की किस टाइप की आपको रखना है इसमें, हमको रखना है इंटीजर, इंटीजर। ओके। देन अगेन यू नीड टू राइट इंटीजर। वैल्यू किस फॉर्म में रखना है, इंटीजर के फॉर्म में रखना है ना, इंटीजर। ओके। तो ऐसे हम मैप को क्रिएट करते हैं। अब इसके बाद आपको लिखना है मैप का वेरिएबल नेम। जैसे हम यहाँ पे इंटीजर कर रहे हैं, इस तरीके से हम मैप का वेरिएबल नेम रखेंगे। सिंपली हम रख लेते हैं मैप। ओके। अब इसके बाद आएगा न्यू कीवर्ड। ये एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं मैप का, तो इसलिए हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद आएगा सब क्लास नेम। अब जो मैप है ना, ये है एक इंटरफेस। अच्छा, इसको जो इम्प्लीमेंट करती हैं वो होती हैं तीन क्लासेस। कौन कौन सी होती हैं, हैज मैप, ट्री मैप और लिंक्ड हैज मैप। तीनों का अलग अलग काम है। हम सबसे पहले देखेंगे हैज मैप को, HAH। आप ऐसा कुछ लिखोगे, यदि आपके HTS में हैज मैप अनेबल है तो हैज मैप ऑटोमेटिक आ जाएगा। हैज मैप को अपने किया अनेबल। अब ये एरर क्यों दे रहा है, पता नहीं क्यों दे रहा है। लेट्स सी व्हाई रिसीविंग, ये इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा मैप को। ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ था, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। यदि हम एक ही उसमें लिखना चाहते हैं, यहाँ पे दोनों को हटा के, चलो सही है जो भी है, स्टार लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इंपोर्ट करना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड क्लासेस हैं, पहले से क्रिएट बनी हुई। अच्छा, इसमें आपको अगर की जो है, ये की है, ये वैल्यू है। ठीक है। इसको चेंज करना हो, लाइक कि अगर आपको स्ट्रिंग रखना हो तो स्ट्रिंग भी कर सकते हो, यदि वैल्यू को स्ट्रिंग रखना हो स्ट्रिंग कर सकते हो, कैरेक्टर रखना हो तो कैरेक्टर कर सकते हो। ये कैरेक्टर वाला क्लास है। ठीक है। सभी काम में हो जाते हैं इसमें, चिंता वाली कोई बात नहीं है, चिंता नहीं करने का। अब इसमें हमको कुछ इंसर्ट करना है वैल्यू को, कैसे करेंगे, अगर मैप के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करना है तो मैप वेरिएबल का नाम एंड देन पुट, PUT पुट, है ना। ये पुट लिखा, और इसके अंदर जो कुछ भी इंसर्ट करना है, की हमको करना है 1 और वैल्यू को करना है 3। अब इसको प्रिंट करेंगे तो देखेंगे, ये देखो 1 की वैल्यू हुई 3। ओके। ऐसे हम पुट कर सकते हैं, इस तरीके से हम मैप के अंदर पुट कर सकते हैं, वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम सम टास्क करेंगे। अच्छा, आप हम ऐसे फ्रिक्वेंसी निकालना है, ये एरे में एलिमेंट्स जो हैं इनकी फ्रिक्वेंसी निकालना है। मतलब कि एक जो है कितनी बार है, दो कितनी बार है, तीन कितनी बार है, चार कितनी बार है, इस तरीके से फ्रिक्वेंसी निकालना है। तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, मैप की सहायता से कर सकते हैं। जैसे कि एक कितनी बार है, दो कितनी बार है, तीन कितनी बार है, ऐसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक लूप चलाना पड़ेगा, फॉर लूप। ये हम जावास्क्रिप्ट में भी करते हैं, ऑब्जेक्ट को यूज़ करके फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए। और हम जावा में देख रहे हैं जावा में फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं, फॉर लगाकर इंट लिखा, इंट मतलब वेरिएबल जो है, वेरिएबल टाइप। देन आई चलेगा 0 से कहाँ तक चलेगा, आई आई चलेगा एरे डॉट लेंथ तक। ओके। तो ये हमारा फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट करता है, 0 से लेकर एरे डॉट लेंथ तक चलेगा। यदि यकीन ना हो तो इसको प्रिंट कर देख के देख लेते हैं, एरे ऑफ आई। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 चल रहा है ना, 1 तक, लास्ट में दो 1 है। पर हमको तो ये मैप में इंसर्ट करना है इनकी वैल्यू को, की में इंसर्ट करना है एलिमेंट्स, और वैल्यू में इंसर्ट करना है उनकी फ्रिक्वेंसी को, कितनी टाइम से, है ना। अच्छा, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले एक तरीका बताता हूँ, हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ मैप मैप डॉट कॉन्टेंट्स की, मतलब कि कॉन्टेंट्स मतलब इसके अंदर की जो है प्रेजेंट है, कौन सी की, एरे ऑफ आई। यदि मैप के अंदर एरे ऑफ आई की जो है
अगर है तो क्या करना है? तो की को वैल्यू को गेट करना है। की वैल्यू गेट किस करेंगे? इंट। वैल्यू भी हमारी इंट में है तो इंटीजर में आएगी वैल्यू। ठीक है। इंट। इंट हमारा आ गया वेरिएबल, वेरिएबल नेम, एंड देन यहाँ पे हम रख देंगे नम, नम का वेरिएबल नेम रख देंगे। और मैप डॉट गेट। गेट गेट एक मेथड है मैप के अंदर जो हम वैल्यू को गेट करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, कौन सी वैल्यू गेट करना है? एरे ऑफ आई की वैल्यू। एरे ऑफ आई की वैल्यू। इस की वैल्यू को गेट कर दो, प्रेजेंट है तो। ठीक है, यहाँ पे अपना वैल्यू आ गई, मान लो एक है तो उसका वैल्यू आ जाएगा। अब उसी को हम पुट कर देंगे। पुट करके नम, यहाँ पे एरे ऑफ आई, एरे, एरे ऑफ आई, ये हमारा हो गया। यहाँ पे की को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो हम एक इंक्रीज कर देंगे उसमें। इंक्रीज कर लेके नम करेंगे और इसके पहले प्लस प्लस लगा देंगे। तो ये हमारा एक इंक्रीज करके उसको अपडेट कर देगा वैल्यू की को। ठीक है, की वैल्यू को। अगर उसमें प्रेजेंट नहीं है तो सिंपली हम एरे को तो हम डालेंगे, ये की को तो हम इंसर्ट करेंगे ही, और वैल्यू को हम कर देंगे एक, मतलब कि वन के साथ अपडेट कर दे। अपडेट नहीं मतलब इंसर्ट कर दे। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। नाउ वी विल प्रिंट द मैप so you can see what is your output. So you can see here 0 only one time, 1 is only 3 time, 2 is only 4 time, 3 is only 4 time. So सभी की फ्रिक्वेंसी, सभी के एलिमेंट्स के नंबर्स, कितनी टाइम्स कौन सी चीजें, सब आ गए। ठीक है, ये तो है एक खासियत मैप की। अच्छा, हमने ये कोड लिखा इतना और इसके अंदर ये लिखा, इसको हम ये इतना लिखा है, इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी, इसको हम अभी कमेंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे मैप डॉट पुट। मैप डॉट पुट को किया, और एलिमेंट, एलिमेंट नहीं, यहाँ पे हम रखेंगे जो भी है एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई को। ठीक है, अब तुम सोचोगे यहाँ पे हम राइट पुट कर रहे हैं, चेक तो कर ही नहीं रहे रिप्रेजेंटेटिव। लेट, सबर करो। तो यहाँ पे तो हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, मैप को, शायद रिकॉर्डिंग चल रही है, मुझे ऐसा लगा रिकॉर्डिंग बंद हो गई। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चालू रहनी चाहिए। सॉरी, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो हमने देख लिया यहाँ पे मैप के अंदर पुट, ये हमारा सेकंड में, सेकंड प्रोसेस है, सेकंड लॉजिक सॉरी है ना। तो यहाँ पे हमने मैप के अंदर पुट कर दिया। अब हम लिख लेंगे मैप डॉट, यहाँ पे एक मेथड होता है गेट और डिफॉल्ट मेथड। ठीक है, ये जावा 8 के अंदर आया था, अपडेट हुआ था ये क्या करता है? ये दो चीज लेता है ना, एक तो जो एलिमेंट है ना, और उसकी वैल्यू कितनी टाइम्स है वो एलिमेंट्स, यहाँ पे वो चेक करता है बाय डिफॉल्ट, है ना। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 रहेगा, और जो एलिमेंट रहेगा यहाँ पर आएगा ए और 0, है ना, प्लस, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा चेक करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे यहाँ से। अगर ये है तो प्लस हो जाएगा, वन प्लस, और नहीं है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ये अपना काम हो गया, बस एक लाइन का कोड है। चेक करते हैं अब इसको भी। ये देखो वही अपना आउटपुट आ रहा है, सेम आउटपुट है, कुछ कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ ब्रो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अपन। तो इस तरीके से हम फ्रिक्वेंसी गेट कर सकते हैं मैप की सहायता से। आप चाहो तो ये वाला लॉजिक यूज कर सकते हो, या फिर ये वाला यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी, सब अपना है। अच्छा, अब हमको देखना है कि ये मैप को तो इटरेट कैसे करना है। इटरेट मतलब कि एक एक एलिमेंट को प्रिंट कैसे करना है ना। सो इसके भी बहुत सारे नहीं, एक दो ही मेथड्स हैं, एक दो ही तरीके हैं प्रिंट करने की। सबसे आसान तरीका है एक तो फॉर लूप, है ना। फॉर लूप की सहायता से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। सो देखते हैं, चलो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है फॉर। ठीक है, फिर आपको लिखना है मैप, MAP मैप। फिर इसका मैप, एक मेथड होता है मैप का, MAP, अरे यार, MAP डॉट एंट्री, ये वाला एंट्री, ये लिखा है ना ब्लू कलर में, ये एक इंटरफेस होता है, मेथड नहीं सॉरी, इंटरफेस है। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, जो भी यहाँ पे है अपना इंटीजर है, इंटीजर इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने कर लिया इसको कॉपी, और यहाँ कर देना है पेस्ट। अब इसके बाद हमको यहाँ पे लिखना है वेरिएबल, जिसके साथ हम एलिमेंट कर देते हैं। ठीक है, एलिमेंट करो, फिर डबल ये लगाना है। फिर इसके बाद आता है मैप डॉट एंट्री सेट। ऐसे हम फॉर लूप को, मैप को इटरेट कर सकते हैं, ये सेंटेंस होता है। ठीक है, हमको इटरेट करने वाला।
और यहाँ पे हम सिंपली आउट करके एलिमेंट कर देंगे। सो हमारा फॉर लूप के सभी एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। यदि आपको इसका की चाहिए ओनली तो डॉट करके गेट की कर देंगे। सो इसके ओनली की आ जाएगी। यदि इसके ओनली वैल्यू चाहिए तो गेट वैल्यू कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी। सो हमने आज सीखा मैप को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, और मैप की सहायता से नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स की फ्रिक्वेंसी कितने टाइम कितने नंबर हैं एरे में, या फिर एरे के यहाँ पे लिस्ट भी हो सकता है, एरे लिस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये था मैप। अच्छा, एक चीज दो चीज़ और रहेगी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था इसके दो क्लास और तीन क्लास होती हैं मैप इंटरफेस की, हैज़ मैप, फ्री मैप और लिंक्ड हैज़ मैप। तो मैं सिंपली इसको बता देता हूँ सिम विदाउट कोडिंग के। ट्री मैप जो होता है वो सॉर्ट करता है अकॉर्डिंग की को, है ना। अब ऐसे देखो, यहाँ पे है हैज़ मैप। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ ट्री, ये देखो अभी ये सारा है विदाउट सॉर्ट है ट्री मैप, ये हो गया ट्री मैप। अब इसको रन करेंगे अगर, तो ये अपना सॉर्ट हो जाएंगे। नहीं सॉर्ट सॉर्ट क्यों नहीं है, कुछ तो गड़बड़ी बाबा, तो नहीं हुआ ये, कुछ तो गड़बड़ी बाबा। लेट्स सी, अगर हम इसको, अरे सॉर्ट तो हो गया भाई ये। हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे की के अकॉर्डिंग सॉर्ट करता है वो। ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, की को सॉर्ट कर दिया इसने, है ना। अगर यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी लिखोगे ना तो स्ट्रिंग को भी सॉर्ट कर देगा अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, डिक्शनरी डिक्शनरी जैसे होती है ना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया अपना ट्री मैप। लिंक्ड हैज मैप में लिंक्ड होते हैं, मतलब कि ये ऑर्डर वाइज होते हैं। जिस तरीके से हम इसमें इंसर्ट करेंगे ना, जिस तरीके से हम मैप में इंसर्ट कर रहे हैं उसी तरीके से ऑर्डर ऑर्डर वाइज होगा, मतलब कि सॉर्ट भी नहीं होगा। और अगर हम सिंपली हैज मैप करेंगे तो इसमें जो एलिमेंट इंसर्ट करेंगे वो कहीं पर भी इंसर्ट, मतलब कि आगे पीछे कहीं पर भी हो सकते हैं। लेकिन लिंक्ड हैज मैप में जिस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे उसी तरीके से इंसर्ट होंगे, ठीक है, आगे पीछे नहीं होंगे इसमें। तो ये है लिंक्ड हैज मैप, लिंक्ड मैप। सो आपने देख लिया बहुत कुछ। अब हम करते हैं इस वीडियो को बंद, और ये वीडियो आप इंजॉय करोगे और नहीं करोगे पता नहीं। गुड बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग।